Good morning children, welcome to your biology class. Dear students, this is the last chapter of our biology, that is natural resources. So today we are going to discuss about natural resources. So what is a resource? Anything which is useful for us is known as resource, or anything which can be converted into a useful form. जो आपके लिए यूज़फुल है और जिसको आप यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम रिसोर्स कहते हैं. एंड दीज रिसोर्स वी गेट फ्रॉम नेचर, सो दीज आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज. Okay, so here are some of the example of natural resources like air, water, soil, minerals, living organism. Okay, now what is this? This is biosphere. क्या है बेटा? ये बायोस्फीयर है. तो बायोस्फीयर में जो बायो वर्ड है उसका मतलब होता है लिविंग. बायो मीन्स लिविंग, स्फेयर मीन्स एरिया. सो बायोस्फीयर का मतलब क्या हो गया? बायोस्फीयर का मतलब हो गया बेटा the area which is covered by living organisms. Okay, bio means living, sphere means area. So यहाँ पे biosphere का मतलब हो गया the area of the earth which is covered by living organism. So this biosphere is formed by the interaction of lithosphere, atmosphere and hydrosphere. Now what is lithosphere? The area of the earth which is covered by land. L for land, L for lithosphere. तो अर्थ का जो एरिया जो लैंड कवर करता है we call it as lithosphere. Hydro means water. So the area of the earth which is covered by water is known as hydrosphere, and we know 70% of the earth is covered by water. What is atmosphere? Atmosphere is the blanket of air which is present around us. Okay, so life is possible in biosphere where lithosphere, hydrosphere and atmosphere interact with each other. Okay, so we have discussed about natural resources. So what are natural resources? Anything which we get from nature and which can be converted into a useful form is known as natural resource. So basically there are two type of natural resources, inexhaustible and exhaustible. Inexhaustible means which will never come to an end, which is present in unlimited amount. So your solar energy is inexhaustible, your wind power is inexhaustible, your rainfall, okay, power of tides, power of water, hydropower. So all these are inexhaustible. Exhaustible means which is limited, which will come to an end, जो एक दिन खत्म हो जाएगा. Okay, so the resources which are present in limited amount are known as exhaustible natural resources. For example, renewable resources which can be renewed, replenish after some time. Their amount get replenished after some time. For example, water, soil fertility, natural vegetation, the plants, forest, wildlife, aquatic animal, human. Non-renewable, biological species, okay, minerals. These are non-renewable which we cannot replenish. Coal and petroleum. These are also the example of non-renewable because formation of coal and petroleum require million of years. Okay, so what is atmosphere? Atmosphere is a blanket of air which is present around us. So in atmosphere nitrogen is present, oxygen is present, carbon dioxide is present, water vapor and other gases are also present. Okay, so oxygen is present in 21% in our atmosphere. And what about nitrogen? 70%. Okay, so this mixture or blanket of air is known as atmosphere, and this atmosphere is necessary for our survival. We cannot survive without this atmosphere. This atmosphere is present on the earth. That is why the average temperature of earth is maintained by it. So average temperature is 15 degrees Celsius. अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे पॉसिबल हुई? ड्यू टू दिस एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर यहाँ के टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है.
दिस एटमॉस्फेयर इज नॉट प्रेजेंट ऑन मून, मून पे ये एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। ओके और अर्थ का टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जो मून का टेम्परेचर है वो वेरी करता है 110 डिग्री सेल्सियस डे टाइम में से -190 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है बेटा। ओके so what is the role of atmosphere in climate control? So atmosphere is a blanket of air which is present around earth. So air is a bad conductor of heat, so it prevents sudden increase in temperature during the day. सनलाइट की वजह से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज नहीं होता जैसा कि मून पे होता है। क्यों नहीं होता? बिकॉज इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके एंड temperature does not decrease during the night because it allow slow escape of heat during the night. So the average temperature of earth is maintained by the atmosphere और पूरे साल ये एटमॉस्फेयर अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है और एवरेज टेम्परेचर मैंने आपको बताया 15 डिग्री सेल्सियस। ओके नाउ the movement of air, movement of wind, how does this take place? So there are two type of breeze, land breeze and sea breeze. तो देखेंगे हम ये कैसे होता है। So आपको पता है यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। आपको 3 बीकर लेने हैं, एक में आप सॉइल रखिए, एक में वाटर और एक में आप उसको खाली रखिए, एम्प्टी रखिए और तीनों में थर्मामीटर डाल दीजिए। सो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? डे टाइम में किसका टेम्परेचर हाई है? द बीकर इन विच सॉइल इज केप्ट। ओके और नाइट में किसका टेम्परेचर सबसे लो है? अगेन द बीकर इन विच सॉइल इज केप्ट। ठीक है, तो डे टाइम में सॉइल जल्दी हीट होती है और नाइट में जल्दी कूल डाउन भी होती है। ओके सो जैसे ही अर्थ के ऊपर सोलर रेडिएशन आती हैं डे टाइम में, तो क्या होता है बेटा? जो लैंड है वो हीट हो जाता है। लैंड गेट हीटेड फास्टर देन द सी। तो लैंड के ऊपर जो एयर प्रेजेंट है वो भी लैंड की हीट की वजह से हॉट हो जाएगी एंड इट विल राइजेस अप। क्योंकि आपको पता है जो हॉट एयर है, वार्म एयर है, वो ऊपर की तरफ मूव करती है। जैसे अगर आपकी मदर पानी गर्म कर रही हैं एक वेसल के अंदर और उसे प्लेट से कवर कर देती हैं, तो जैसे ही वाटर वेपर की फॉर्म में आएगा तो वो जो प्लेट है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करने लगती है। तो डे टाइम में क्या हुआ था? सोलर रेडिएशन लैंड पे आई, सोलर रेडिएशन की हेल्प से जो लैंड था वो हीट हो गया, जिसकी वजह से उसके ऊपर की एयर भी हीट हो गई एंड इट राइजेस अप। ओके वाटर देर से गर्म होता है, सो वाटर के ऊपर जो एयर प्रेजेंट है उसका टेम्परेचर लो है। ओके तो जैसे ही लैंड की एयर गर्म हुई और वो ऊपर की तरफ मूव हुई तो वहाँ पे क्या हो गया? वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया और वाटर के ऊपर जो एयर है वो हैवी है और वहाँ पे हाई प्रेशर है। सो एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सो हाई प्रेशर सी में है, सो सी टू लैंड ब्रीज जाएगी, एयर मूव करेगी और इसी को हम कहते हैं सी ब्रीज। डे टाइम में कैसे मूव होगी बेटा एयर? फ्रॉम सी टू लैंड। सी के ऊपर हाई प्रेशर है, लैंड के ऊपर लो प्रेशर है। लैंड के ऊपर लो प्रेशर कैसे क्रिएट हुआ? सोलर रेडिएशन ने लैंड को हीट किया और लैंड की हीट की हेल्प से जो इसके ऊपर एयर प्रेजेंट थी वो भी हीट अप होके ऊपर की तरफ मूव हुई। सो एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सो डे टाइम में क्या होगा? एयर विल मूव फ्रॉम सी टू लैंड एंड दिस इज नोन एज सी ब्रीज। अब नाइट में क्या होगा? नाइट में इसका जस्ट अपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि जो लैंड था वो हीट अप फास्ट हुआ था तो वो कूल डाउन भी फास्ट होगा। ओके अब जो सी है उसके ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा है, सी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसके ऊपर की जो एयर है वो हीट होके ऊपर की तरफ मूव करेगी एंड दिस क्रिएट अ लो प्रेशर एरिया। वहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब लैंड पे हाई प्रेशर है, सो नाइट में जो एयर है वो मूव करेगी लैंड टू सी और इसी को हम कहते हैं बेटा लैंड ब्रीज। ओके एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो आपको यहाँ पे याद रखना है डे टाइम में लैंड के ऊपर लो प्रेशर एरिया है हीटिंग की वजह से। ओके
और वाटर के ऊपर सी के ऊपर हाई प्रेशर है, सो सी से एयर आएगी लैंड की तरफ, दिस इज नोन एज सी ब्रीज। और नाइट में अपोजिट होगा, नाइट में हाई प्रेशर एरिया किसके ऊपर प्रेजेंट है, हाई प्रेशर एरिया इज प्रेजेंट ऑन दी लैंड, हाई प्रेशर एरिया लैंड के ऊपर प्रेजेंट है, ओके और लो प्रेशर एरिया किसके ऊपर प्रेजेंट है, लो प्रेशर एरिया इज प्रेजेंट ऑन द सी। सो एट द नाइट the air will move from land to sea, this is known as land breeze, okay। so what is the rain, तो आपने बचपन में वाटर साइकिल पढ़ी होगी, इवोपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। तो अर्थ के ऊपर जो भी वाटर बॉडी है उसमें जो भी वाटर है वो सोलर रेडिएशन की हेल्प से हीट होता है और वाटर वेपर की फॉर्म में ऊपर की तरफ मूव होता है, इवोपोरेशन होता है, और ऊपर जाके लो टेम्परेचर की वजह से वहाँ पे कंडेंसेशन होता है, ठीक है। और जैसे ही कंडेंसेशन होगा और ये क्लाउड्स हैवी हो जाएंगे वैसे ही ये प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में, रेन की फॉर्म में वापस अर्थ के ऊपर आ जाते हैं, ओके। सो दिस इज रेन। सो एयर पॉल्यूशन देखिए, एयर पॉल्यूशन पता है आपको किस वजह से हो रहा है, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की वजह से, इंडस्ट्रियल जो बर्निंग है उसकी वजह से हो रहा है, ओके। सो जो भी कोल, पेट्रोल या कोई भी फ्यूल बर्न होता है सो उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, ऑक्साइड ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन, ये जो भी रिलीज होते हैं, ओके, ये एयर को पॉल्यूट करते हैं। और जैसे ही रेन आती है उस रेन वाटर में ये ऑक्साइड्स डिसॉल्व होके अर्थ के ऊपर आते हैं और इसी को हम कहते हैं एसिड रेन। और एसिड रेन की वजह से ताजमहल का जो मार्बल है वो कैसा हो रहा है, वाइट से येलो होता जा रहा है, ओके। सो जैसे ही फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं तो इसमें जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हैं उससे विजिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, ओके। और कोल्ड वेदर जैसे ही विंटर्स आती है उसमें क्या होते हैं, उसमें ये जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हैं जो कम्प्लीटली बर्न नहीं हुए वो वाटर के साथ कंडेंस हो जाते हैं और वो स्मोक बनाते हैं, ओके। क्या बनाते हैं वो, स्मोक। सो फॉग प्लस स्मोक, फॉग और स्मोक दोनों कंबाइन होके स्मोक बनाते हैं बेटा, ओके, जिससे बहुत सारी एलर्जिक डिजीज़ होती हैं, अस्थमा होता है बच्चों में, कैंसर, हार्ट डिजीज़, ब्रीदिंग, जो भी आपके रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, ओके। वाटर, अब आपको पता है हाइड्रोस्फेयर में हमने देखा 70% ऑफ द अर्थ एरिया इज कवर्ड बाय वाटर, ओके। सो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। वी नीड वाटर फॉर आवर लाइफ प्रोसेसेस, सेल्यूलर एक्टिविटीज़, आपकी बॉडी में जो भी सेल्यूलर रिएक्शंस हो रहे हैं, सेल में जो भी फंक्शन हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, बॉडी से वेस्ट का रिलीज़ होना, उसके लिए भी वाटर की ज़रूरत है, ओके। सो डाइजेशन के लिए, हमें सर्वाइवल के लिए, है ना, हमारे बॉडी में सेल्यूलर एक्टिविटीज़ के लिए वी नीड वाटर, ओके। सो जो अमाउंट ऑफ वाटर है और टेम्परेचर और भी जो फैक्टर्स हैं जैसे सॉइल हो गया, ओके, ये सब किसको डिसाइड करते हैं, दे डिसाइड द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज एंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ओके, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर प्रेजेंट इन एन एरिया, ओके। सो वाटर पॉल्यूशन में देखिए द इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन वाटर। बेटा पॉल्यूशन की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, एनी अनडिज़ायरेबल चेंज, ठीक है, किसी भी तरीके का जो अनडिज़ायरेबल चेंज है, चाहे वो सॉइल में हो, चाहे वो वाटर में हो, चाहे वो एयर में हो, विच इज़ हार्मफुल फॉर अस। सो एनी अनडिज़ायरेबल चेंज विच इज़ हार्मफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज पॉल्यूशन। अब अगर ये वाटर की बात हो रही है तो इसमें आप वाटर ऐड कर दीजिए, एयर की बात हो रही है तो एयर ऐड कर दीजिए, सॉइल की बात हो रही है तो सॉइल ऐड कर दीजिए। सो एनी अनडिज़ायरेबल चेंज in the water which is harmful for living organism is known as water pollution. So water pollution कैसे होता है, by addition of harmful substances जैसे fertilizers और pesticides ऐड हो गए water body में, सीवेज ऐड हो गया, ठीक है, जिससे बहुत सारी डिजीज़ होंगी, फैक्ट्री का जो हार्मफुल केमिकल्स हो गए, ठीक है, और जो मेटल्स वगैरह हैं वो भी अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गए तो वो डिजीज़ कॉज करते हैं, हमारे लिए हार्मफुल हैं, ओके। These type of waste reduces
BOD. What is BOD? BOD is biological oxygen demand. The amount of oxygen required by the bacteria to decompose the waste present in the water body. वाटर बॉडी में जो भी वेस्ट प्रेजेंट है उसे डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरियाज को जो भी ऑक्सीजन का अमाउंट चाहिए होता है वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। तो जितना ज़्यादा प्योर वाटर होगा उतनी उसकी BOD कम होगी, क्योंकि प्योर वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व रहती है ना, और जितना ज़्यादा वाटर पॉल्यूटेड होगा उतनी ज़्यादा उसकी BOD होगी। Okay, biological oxygen demand. What is BOD? BOD is biological oxygen demand, the amount of oxygen required by the microorganisms or required by the bacteria to decompose the waste present in the water. Okay, so यहाँ पे देखिए यूट्रिफिकेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये NTSC में पूछा भी जाता है और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सो व्हाट इज़ यूट्रिफिकेशन? यूट्रिफिकेशन इज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी। अच्छा, एल्गी की एक्सेसिव ग्रोथ कैसे होती है? एल्गी इज एक्वेटिक, आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा। सो वाटर बॉडी के ऊपर एल्गी की ग्रोथ, आप जब भी स्कूल जाते हैं तो आपने स्कूल जाते हुए हासाका का पॉन्ड देखा होगा और वो पूरा एल्गी से कवर है, एल्गल ब्लूम्स है वहाँ पे। ओके, सो एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी। अब ये कैसे हुई देखिए, जो भी फर्टिलाइजर्स आप लोगों ने क्रॉप्स को दिए, जैसे फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ओके, यही नाइट्रोजन फॉस्फोरस ये फर्टिलाइजर्स रेन की हेल्प से वॉश आउट होके आसपास की वाटर बॉडी में चले जाते हैं। अब उस वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स आ गए, तो उन न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से, उस नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की हेल्प से वाटर के अंदर एल्गी ग्रो हो जाती है। ओके, और अर्थ के वाटर के पूरे सरफेस को, वाटर बॉडी के पूरे सरफेस को वो एल्गी जो है वो कवर कर लेती है, जिससे क्या होता है बेटा, धीरे धीरे जैसे ही वो एल्गी की डेथ हो जाएगी, उसका लाइफ स्पेन कंप्लीट होगा, एल्गी डेड होगी, तो जो ऑक्सीजन है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, वो भी कम हो जाएगी। और अगर ऑक्सीजन कम हो गई वाटर के अंदर तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट इज यूट्रिफिकेशन? एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी ड्यू टू एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी, ड्यू टू न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी। वाटर बॉडी में जब भी नाइट्रोजन फॉस्फोरस का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा तो वहाँ पे एल्गी की ग्रोथ हो जाएगी। क्यों ग्रोथ होगी? क्योंकि वहाँ न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं। सो यूट्रिफिकेशन के जो कॉजेज हैं, ओके, जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो देखिए जो सीवेज जा रहा है सिटी का या इंडस्ट्रियल वेस्ट जो जा रहा है, ओके, एटमॉस्फेरिक डिकम्पोजिशन हो रहा है, जो डिपोजिशन, सॉरी, एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन हो रहा है नाइट्रोजन का, जो गैसेस के कंबशन से हो रहा है या एनिमल ब्रीडिंग की वजह से हो रहा है, या जो भी ऐसे नॉन पॉइंट पॉल्यूटेंट सोर्सेज हैं जिसको आपको पता ही नहीं वाटर बॉडी किस वजह से पॉल्यूट हो रही है, या जो फर्टिलाइजर्स वगैरह वॉश आउट होके आ गए। सो इरोजन एंड लीचिंग फ्रॉम फर्टिलाइजर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर एरिया, एग्रीकल्चरल जहाँ पे भी फार्म वगैरह है वहाँ से जो फर्टिलाइजर्स वॉश आउट होके वाटर बॉडीज़ में आ गए। नाउ दिस इज बायोमैग्निफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो टॉपिक आपके 10th में भी आएगा। व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन? बायोमैग्निफिकेशन इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ओके, तो बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है बेटा? एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, उसके टिश्यूज में जब हार्मफुल केमिकल्स एक्यूमुलेट होते हैं उसको हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। ओके, और ये जो हार्मफुल केमिकल हैं ये फूड चेन के साथ साथ ऑर्गेनिजम्स में एंटर कर जाते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे आप देखेंगे कुछ प्लांट्स दिखाए हैं और उसमें रेड कलर का स्पॉट दिखा रखा है। तो ये जो रेड कलर का स्पॉट किस लिए दिखाया है? ये दिखाया है हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस के लिए। तो जैसे ये यहाँ पे लार्ज फिश है, इसने 3 फिशेस को खाया है ना, तो 3 फिशेस का जो हार्मफुल केमिकल था वो इसकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया। इस एग्जाम्पल को देखते हैं हम। देखिए जैसे यहाँ पे वाटर के अंदर 2 पार्ट्स पर मिलियन हार्मफुल केमिकल प्रेजेंट था, ओके, और ये जो प्लैंक्टन्स है एक्वेटिक
जो छोटे छोटे जू प्लैंक्टन्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, जिनकी बॉडी में वाटर की वजह से ये जो हार्मफुल केमिकल था ये एक्यूमुलेट हो गया। अब इन जू प्लैंक्टन्स पे किसने फीड किया? फिश ने फीड किया, फिश ने इनको खा लिया। तो इन सब की बॉडी में ये जो भी हार्मफुल केमिकल था वो इस फिश की बॉडी में चला गया। अब इस फिश को जब इस एनिमल ने खाया तो उसकी बॉडी में ये और ज़्यादा अमाउंट में चला गया, क्योंकि हो सकता है इसने 2 फिशेस पे 4 फिशेस पे फीड किया हो। सो ये जो हार्मफुल केमिकल है जब ये फूड चेन के साथ साथ एंटर करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी और सेल्स में, तो इसको हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो बायोमैग्निफिकेशन किसके लिए ज़्यादा हार्मफुल है? डायग्राम से बिल्कुल क्लियर है। जो फूड चेन के टॉप पे जो एनिमल होगा उसके लिए ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल है ना। तो जैसे जैसे फूड चेन बढ़ती है वैसे वैसे बायोमैग्निफिकेशन इंक्रीज होता है। ये हार्मफुल केमिकल्स ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंक्रीज होते जाते हैं। और आपको पता है वी आर कार्निवोर्स, कार्निवोर्स भी हैं हम और हम हर्बीवोर्स भी हैं। तो हम क्या आते हैं? हम ओमनीवोर्स बन गए। ओके, ओमनीवोर्स कौन होते हैं? ओमनीवोर्स वो होते हैं जो प्लांट पे भी फीड करते हैं और एनिमल्स पे भी फीड करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स ओमनीवोर्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हम कार्निवोर्स भी हैं और हर्बीवोर्स भी हैं, है ना। तो हम फूड चेन के टॉप पे हैं। तो बायोमैग्निफिकेशन सबसे ज़्यादा किसके लिए हार्मफुल है? हमारे लिए। ओके, so now we will discuss some diseases which are caused due to water pollution. Okay, so देखिए जब भी वाटर के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेट होते हैं तो वो ह्यूमन हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। तो जैसे हैवी मेटल्स हो गया, लेड, मर्करी, कैडमियम, तो ये वेरियस टाइप ऑफ डिजीज़ कॉज करते हैं। जैसे अगर मर्क्यूरी प्रेजेंट है, ठीक है, वाटर के अंदर अगर मर्क्यूरी का कंटामिनेशन है, मर्क्यूरी प्रेजेंट है वाटर बॉडी में, तो M फॉर मर्क्यूरी, N फॉर मिनामाटा। सो मर्क्यूरी के पॉल्यूशन की वजह से कौन सी डिजीज होगी बेटा? मिनामाटा। ओके, अब ये जो मर्क्यूरी है ये हमारी बॉडी में कैसे एंटर करेगा? भाई जो वाटर बॉडी में प्रेजेंट है तो फिश उसको फीड करेगी, और मैंने आपको बताया कि वी आर ओमनीवोर्स, है ना। और उस फिश को जब हम खाएंगे तो वो हमारी बॉडी में, फिश से हमारी बॉडी में मर्क्यूरी ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही दूसरा जो मेटल प्रेजेंट है कैडमियम, कैडमियम से कौन सी डिजीज़ होती है? इटाई, जिसको क्या कहा जाता है? आउच आउच सिकनेस, ठीक है। तो ये जो है राइस फील्ड्स में चला जाता है। भाई अगर किसी वाटर बॉडी में कैडमियम प्रेजेंट है और वही वाटर हम अपने फील्ड्स में सप्लाई करेंगे, खेतों में देंगे, तो जो राइस वहाँ पे ग्रो कर रहा है उस राइस में भी ये कैडमियम एक्यूमुलेट हो जाएगा, है ना। तो ये देखो जापान में हुई थी ये डिजीज़, जिसमें जॉइंट्स और स्पाइन का जो पेन था, सीवियर पेन हो गया था, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे ये टॉपिक हमने डिस्कस किया है, और नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट फॉर्मेशन ऑफ सॉइल।